Today we have a guest in our office. 30 years ago he came to our place and at that time he was rocking. Even today he's rocking. So हम लोग बैठ के and I was playing and I kept on saying and Rajesh is So please welcome Leslie Lewis. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Hello everyone, I'm Syed Firdaus. You're watching Rediff podcast. Today we have a guest in our office. 30 years ago he came to our place and at that time he was rocking. Even today he's rocking. So please welcome Leslie Lewis. Thank you so much. It's really an honor to come back after 30 years and still be interviewed. Yeah, thanks for coming. First question, आपके बाल थोड़े बदल गए खाली पहले 4 चोटी थे अभी 1 चोटी है. हाँ, जैसे साल जड़ते जा रहे हैं बाल भी जड़ते जा रहे हैं साथ साथ. So I still have one left. I love it. Yeah. And as long as I have it, I'll be wearing it. Yeah. So tell me, Leslie, like your journey, what we know about your journey is that your father was a choreographer. Yes. But how did you land up in music? Because the obvious choice would have been choreography. Because बचपन से my dad was a musician. मतलब तबला बजाते थे. He used to love electronic music. मतलब instruments जो electronic sounds करते थे. So because of that, somewhere I got attracted to guitar. क्योंकि घर में गिटार था. Just because he was interested. Yeah. And then, in hip hop and आज जो rap hip hop में TR-808 Roland का जो एक drum machine है, that's cult status. वो मेरे पास था. Okay. I had it at home. So I was learning on all the really cool tools and how to use it at the time when electronics had just started in the world. Okay. So I was that young new wave EDM electronic Yeah, I got a point. Yeah. dance music that you want to create with electronic instruments, but hardware, not software, because there was no computers. Okay. So from there I started playing guitar. I went to school. I studied most of my guitar playing happened in St. Mary's in Mount Abu. So I was in the boarding school. Okay. वहाँ से I got exposed to so much of music. Eric Clapton, the Beatles. घर पे there was लता जी, आशा जी, किशोर दा, रेडियो चल रहा है. Yeah. So पढ़ाई वढ़ाई होती थी कि आपकी मतलब? पढ़ाई कोशिश तो थी. I was part of the gang, keep scraping through, but the excitement for music has always actually started growing more and more. I would do very experimental things, like I would take my guitar and go to a stream जहाँ पानी बहता है, छोटा सा stream, वहाँ रिकॉर्ड करके sing my song. तो गाने के पीछे पानी का एक साउंड आए. So I used to record stuff like that in the forest, outside the school, ये वो, because वो जंगल में था. Right. So that experimental mode मुझे वहाँ से ही एक शुरुआत मिली. And then when I came to Mumbai, I started, I didn't know anybody in Mumbai. So the first band I got into was a band called Blue Diamond Orchestra. Okay. And Orchestra, आपल्याला माहित आहे मराठीमध्ये Orchestra म्हणतात. And it's Blue Diamond Orchestra, Yeah. which was in the fishing colony in Mahim. Okay. Fisherman colony. And I used to play with them for all the, Ganpati festivals. मतलब सात पार्टी, उम्बरगांव, धारावी, वरदराजन की गणपति भी बजाना. Yeah. So I used to play on the road. Whatever it took, I used to be playing with them. Okay. तो वहाँ वो टोटल जनता म्यूजिक क्या होना चाहिए, लोगों को क्या पसंद है और लोगों को मतलब अच्छा क्या लगता है, इंडियन लोगों को जो जनता है. Yeah. वो सीख के I got to learn on the job, and then I started playing at Cafe Royal at the Oberoi, and वहाँ jazz और that is great. and then with Louis Banks and Oh, I see. so I was then playing with Louis Banks. तो एक साइड प्योर जनता, एक साइड प्योर जैज. Yeah. बट उसका एक मेल कहाँ होता है, जो आर्टिस्टिक म्यूजिक है और एक जो कमर्शियल म्यूजिक है उसका एक सेंटर का होता है. तो वहाँ से व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जिंगल्स, इट जस्ट हैपेंड दैट आई हैड टू कि इस मौसम में मुझे कोल्ड ड्रिंक बेचना है, बट आई कैन ओनली सेल फ्रॉम अप्रैल टू जून. उसके बाद ठंड आती है तो आई कांट सेल कोल्ड ड्रिंक्स, देन आई हैव टू सेल कॉफ़ी. In the rain, it's great to have coffee. How does it feel? उसका music बनाना है, उसका. So all those things, the client wants me to. So how to learn what the client wants, और उसको musically कैसे deliver करना. तो mango fruity, fresh and juicy. तो मुझे बस लिख के आया mango fruity, fresh and juicy.
कंपोज करो, रिकॉर्ड करो. So I called Sharon Prabhakar, who was an amazing singer at that time. She's still there, and she is an amazing singer. But उसने जो गाया है मैंगो फ्रूटी फ्रेश, इमीडिएटली एक मैजिक आ गया है. या दूध 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 पियो ग्लास, दूध 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 पियो ग्लास फुल, दूध है मस्त ने. सो व्हाट इज गिवन टू यू इज अ स्क्रिप्ट. तो एक सो यंग लिरिक राइटर्स है, उनके माइंड में भी कोई ट्यून है, they'll come and hum it in the kind of tune that they like, but you can't take some international tune ना, पूरा copyright का problem हो जाएगा. So you have to compose your own thing. So how do you get it to the आम जनता की? So that's what I learned as a jingle composer. And वहाँ जाते जाते I started producing music. So I started creating music for other artists. So सुनीता राव के लिए मैंने परी हूँ मैं. हाँ, that is the most. So that has become the national anthem of Gujarat. Yeah. उसके बिना डांडिया होता नहीं. Right. But do you feel that somewhere the limelight was taken by Sunita rather than? Absolutely not. She is the princess of that space. She is the singer. But आपने म्यूजिक दिया, आपका उतना नाम नहीं हुआ comparatively. Did you feel at that time? क्योंकि उस टाइम म्यूजिक डायरेक्टर का कुछ नाम होता नहीं था. मतलब अगर आप बॉलीवुड में रहते तो बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टरों का नाम रहता था, बिकॉज कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम जी, जो भी है. अभी जो पॉप वेव में है, वाह ही इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट साउंड, आई एम द सिंगर, आई एम द स्टार. अभी आप बियॉन्से को देखोगे, यू डोंट नो म्यूजिक किसने किया है. आज के ज़माने में भी इफ़ यू टेक द बिगेस्ट आर्टिस्ट, यू डोंट नो म्यूजिक उसके पीछे किसने किया है. क्यों? आपको सिर्फ वो पैकेज दिखता है. तो वो जो फॉर्मूला जो आ गया था इंडिया में थ्रू MTV एंड चैनल वी, कि जो दिखा रहे हैं वो पीछे, वी वांट द बेस्ट पीपल. सो आई वाज कंसिडर्ड समबडी हु कैन क्रिएट अ ग्रेट सॉन्ग. तो परी हूँ मैं इतना बड़ा गाना बन गया. यस, नाउ एवरीबडी इज बिगन टू रियलाइज कि सर आपने कंपोज किया, ये आपका गाना है या मेरा गाना है. तो ये जो इफ यू कैन जस्ट हम अ वर्ड पर यू आपको कैसे आया, मतलब बिकॉज़ इज द मोस्ट फेमस सॉन्ग. तो जब मैं कंपोज कर रहा था ना, दिस सॉन्ग इज रिटन बाय राजेश जोहरी जी. तो हम लोग बैठ के एंड आई वाज प्लेइंग एंड आई केप्ट ऑन सेइंग टा. मुझे एक फ्रेज एंड राजेश लेजी परी हूँ मैं. राजी ये नहीं, प्लीज नॉट परी हूँ मैं. कुछ आई नीड साउंड लिटिल फंकी. लेस्ली जी मैं बोलता हूँ ये गाना हिट है. आई आर्ग्यूड विथ हिम फॉर सम टाइम, बट यू सी एट द एंड द लिरिक राइटर नोज द बेस्ट. और आई एम नॉट अ लिरिसिस्ट इन दैट सेंस. तो ऐसा ठीक है, अगर आपको एज लिरिक्स लग रहा है कि ये गाना हिट होगा एज परी हूँ मैं, ओके, दैट्स योर. एंड ही वाज राइट. Everybody singing Pari Hu Main today. Yeah. Now going back to your days when you were sitting next to the stream and listening to the music, you think God has gifted you with the music, or you have to practice music and become a musician? मैं AI तो नहीं हूँ. I have to practice. I have to learn the craft. I have to hone it so much that it becomes part of my system. Yeah. But God is there. एक ही आदमी ने बॉलीवुड रीमिक्स स्टार्ट किए. पिया तो अब तो आ जाओ, ओ मेरे सोना रे. एक ही आदमी ने इंडी पॉप स्टार्ट किया. परी हूँ मैं, जानम समझा करो, यारो दोस्ती, पल काय झाला. एक ही आदमी ने इंडियन फ्यूजन अलॉन्ग विथ हरिहरन स्टार्ट किया, कॉलोनियल कजन्स. और वो एक ही आदमी ने कोक स्टूडियो इंडिया में स्टार्ट किया है. तो आई मस्ट बी ब्लेस्ड ना. Why me? No, but did someone? So God is there. Yeah, but did someone point out कि ये लड़का जाके बहुत आगे नाम करेगा करके? Who was the person who really spotted you? Like if you can go back. क्योंकि आप तो बैंड बजा रहे थे मच्छी मार कॉलोनी में और यहाँ पर just entertaining yourself, but किसी ने आपको देखा होगा भाई आप थोड़ा हटके बजाइए, मतलब आप पे है कुछ दम है. होता ना कि ऐसे आपके शिष्य, वैसे आपके भी तो कोई गुरु होंगे. नंदू भेंडे थे मेरे ख्याल. नंदू भेंडे, yes, he came in later in the 80s. उससे पहले किसने देखा कि आप में पोटेंशियल है? नहीं, पोटेंशियल तो मुझे लगता है एज ए यंग आर्टिस्ट कोई आके ज़्यादा बोलता नहीं कि हे यू आर गोइंग टू मेक इट. कभी कभी किसी ने बोल दिया. सो माई नेबर्स अंकल यूज टू एवरी डे आई यूज टू कम गो टू हिज हाउस. तो एक टावल लेके ऐसा खड़ा रहता था, लाइक ही इज बिहाइंड द कर्टन एंड अब पेश करते हैं लेस्ली लेविस टैन करके कर्टन ड्रॉप करता. ऐसे क्या कर रहा है, बड़े ऐसा ही हो रहा है. सो दे सॉ द पोटेंशियल. इज देयर वाज गुरु काका, गुरु मामा, एंड ही यूज्ड टू कीप थिंग्स. सो पीपल लाइक दैट हैव ऑलवेज encouraged you कि भाई
So this was happened. This happened in Mahim. This हाँ, Guru Mahim, Kaka. हाँ. So आपके पड़ोस में जो रहते थे वो टॉवल ऐसे आपको नहीं, पड़ोस, हाँ, पड़ोस में What was the age at that time? What 18, 19. Oh, so he at least you felt happy about it. वो तो वही तो हमको एनकरेज करता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इनको अच्छा लग रहा है व्हाट आई एम डूइंग. तो वो करते करते बाय द टाइम यू स्प्रेड योर विंग्स अराउंड द कंट्री इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, Yeah. देन यू रियलाइज गॉड इज विथ यू. बिकॉज उनके बिना तो मैं आई एम जस्ट अ सूत्रधार. Yeah. हैव यू हर्ड माय न्यू सॉन्ग्स? There's an album called The White Album. Yeah. The white album. It's just romance. But उस टाइप का रोमांस आज आपको नहीं मिलेगा. आफ्टर दैट there's another one called फिर से रॉक एंड रोल. ऐसा रॉक एंड रोल तो आपको इंडिया में मिलेगा नहीं. सो एज आई गो फॉरवर्ड आई एम ब्रिंगिंग जो मैंने सीखा है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि इंडियन लोगों को अच्छा लगेगा, एंड दैट इज स्टिल इन ट्रू फॉर्म. सो आई एम ऑलवेज इवॉल्विंग, Yeah. बट आई लाइक टू स्टे कनेक्टेड विद द ऑडियंस. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे जो भी गाने हैं ना, Yeah. नो मीनू के बैंड ऑफ बॉयज, मेरी नींद उड़ गई, याद है वो नदिया किनारे, वो सब लोगों से कनेक्ट करते हैं ना गाने. सो आई एम जस्ट हैप्पी कि जो मैं कंपोज करता हूँ वो लोगों को अच्छा लगता है. Yeah. But what about your father? Did he say what when you were joining this music field? What did he say to you? Or did you ever try dancing or something like that? I never wanted to dance. In school, I was forced to dance. I had to put a lungi and ganji. Yeah. They painted my face black with that boot polish. And I had to do, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, अरे तेरे डैडी ने किया तो तेरे को क्यों करना है. तो at the end of the day, those things made me feel like I don't want to dance. I don't want to get in that. तो उसके लिए maybe I just took music as an opposite field कि मैं अपना कुछ कर लेंगे. And that's how I kind of, मुझे लगता है कि उस एरिया में ज़्यादा डेवलप हुआ. क्योंकि डांस के, बिकॉज डांस मीन्स आई बी अंडर PL Raj's umbrella. कुछ भी हाँ बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा डैडी यू विल ऑलवेज गेट. एंड माई डैड वॉज फैंटेस्टिक, देयर इज नो डाउट. आई यूज्ड टू लाफ एट हिम. मुझे क्या झाड़ू के रहो तुम लोग नाच रहे हो, खाई के पान बन, क्या है भैया लोग नाच रहे हैं, तुम व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज सो आर्टिस्टिक अबाउट इट. Oh, that Amitabh Bachchan song, you told him that? हाँ, बिकॉज आई सेड यू आर डूइंग टिपिकल लोकल. उस टाइम देसी तो देसी लगता था ना, हम लोग तो अंग्रेज स्कूल में डाल के तो हम लोग को अंग्रेज बना दिया. तो ऐसे थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, ये क्या. बट व्हेन यू लुक बैक एंड से ब्रो, दे वर ऑल अहेड ऑफ द टाइम. Yeah. तो वो लर्निंग बाद में आता है. एज यंग म्यूजिशियन आपको लगता है कि जो मुझे आता है सब आता है, Yeah. एंड मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ा है, मैंने सब देखा है. एज यू गेट इनटू द बिजनेस यू रियलाइज कि यू रियली नो नॉट मच. इतना ही मालूम है, बाकी का बहुत कुछ है. But he had a wisdom, if I'm not mistaken, that he told you that English हिंदी को mix करके तुम्हें कुछ करना चाहिए. ये बात सच है. मतलब he was the person who pointed out that this is the quality you have and which you later on, very much late in life, you realize. Yeah, because Like- we never had great conversations because my dad and I, we didn't really converse. मतलब he was Daddy G and I was Leslie and तू नहीं बनेगा जब तक बॉलीवुड नहीं करेगा, it's क्या कर रहा है तू, ये बैंड में बजा के, कुछ नहीं होने वाला. and I don't blame him because when I look back now, Yeah. all the bands, there were people, they were either drinking or they were womanizing or they were doing some smoking or they were not becoming Career-wise, artists. Yeah, artists. Yeah. हाँ, तो उसका पॉइंट था कि तो बेटर तुम फिल्मों में बजाओ, वहाँ तो तुम्हारा कुछ नाम बनेगा एज अ. सो वन डे ही वॉज डिस्कसिंग, ही वॉज इन अ गुड मूड एंड ही टोल्ड मी, मैं एक थोड़ा आइडिया देता हूँ, तो पहला थोड़ा इंग्लिश में गा ले, उसके बाद ना थोड़ा सा उसको हिंदी 2 लाइन हिंदी में गा लेना. तो ऐसे डैड यू मैड, फॉरगेट इट, ये आधा इंग्लिश में गाओ. एंड आई लाफ्ड, आई लेफ्ट इट. And years later, I'm saying something about the way you smile. Oh, Jana, निगाहों में कहाँ से हिंदी आ गया भाई बीच में. तो then I realized कि ये जो बीज डाला है ना माइंड में, he's right. So he was there at that time when you composed this? Yes. And then he started growing his hair long. He never had long hair Yeah. all his life. Not through where we were born. Yeah. My sisters and I. But जब colonial cousins हुआ तो my dad started growing a ponytail. So I said, wow. Welcome, thank you. And did you ever go to sets and saw Bachchan dancing or Yes, something like that? How many times you had gone to? Many times. As a young kid, I used to go for recordings. As to be like if there was a Kalyan Ji Anand Ji recording, तो recording छोड़ो sitting में जाते थे जब compose होता था.
Yeah. तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, my dad, director, producer, all are sitting there. And one side is Viju Shah, Kalyan ji bhai's son. Yeah. One side Leslie Lewis, PL Raj's son. Now they have been brought by their fathers. ना चलो mother's master से इसको लेके जाओ भाई. कुछ तो सीखेगा. हाँ कुछ या get him out of my hair. इसको साथ में लेके जाओ. तो he is sitting, then Viju will say something. Shh, disturb मत कर. हम लोग we start laughing at something. You know, we're kids. Yeah. रिकॉर्डिंग में गया तो विजु और मैं देखो वो इंस्ट्रूमेंट क्या, वाओ, इलेक्ट्रिक गिटार, वाओ, एम्पलीफायर, वाओ. सो ग्रोइंग अप इन दैट एनवायरनमेंट मुझे सीखने को बहुत मिला. Yeah. Because I was directly in there. R.D. Burman, I'm sitting there with my dad, and they're composing, and he's also recording it on a cassette. कि जो compose हुआ by mistake कुछ भूल गया तो it's already recorded. So all those things we learned early in life. Yeah. How to compose, how to arrange. But why did you take this route of going to, like Machhimar Colony, then I didn't take the route. God said. rather than directly going to an established music director and said, भाई मुझे काम करना है आपके साथ. वो या मुझ में नंदू के है साथ. नहीं. Sorry. I don't have that कि भाई मुझे काम दो. I need work. I have no problem with asking for work. That is not an ego issue. I just feel like I want to play my music, and if you want my music, you ask me, no, I'll come. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ ना. But what is the point of going to 5 people to say for me, I look at it like that कि 5 लोग के पास में जाके बोलूँगा, excuse me, do you have any work for me? I'm saying just listen to my work ना. If you think you have work for me, you will call me. और वही तो हुआ. Whether it was advertising, jingles, Indian pop music, जो भी they approached me for the work I was doing. तो मुझे वो जैसे एक होता है ना, एक करने से आदत हो जाता है. वो कभी किया ही नहीं पहले से. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. आई एम जस्ट सेइंग आई नेवर डिड इट. तो वो कैसे करना, क्या करना, किसको कैसे पूछना. बट व्हेनेवर आई हैड अ चांस, अंकल मेरा गिटार बजा रहे हैं, ओके. सो आई वुड गेट दैट अपॉर्चुनिटी इफ आई आस्क्ड, बट आई जस्ट डिडंट नो हु टू आस्क, हाउ टू आस्क. So I just kept doing the music and the work Sitting came. next to R.D. Burman and all these people, you never asked? They were my seniors. I was a kid. How can I ask R.D. Burman when I'm a kid कि आप आपकी बेटे को, छोटे बच्चे को लेके आए, अंकल मेरे को आपका रिकॉर्डिंग में. They will not take you that seriously, ना. You obviously, unless they need you for some shot or some. Yeah. So I just learned. But later on, when I became a professional, Yeah. I was recording for R.D. Burman also. Yeah. Besides Kalyan Jayani, besides Lakshmikant Pyarle. In fact, there was one moment in my life जो मुझे एक इंजेक्शन शॉट मिला is 11 बजे सब लोग चाय का ब्रेक लेते, तो all the musicians went out and there was nobody inside the studio. It's a Bombay lab in Prabhadevi. And I picked up my guitar and I started playing one composition of mine. तो वहाँ पियानो था, पियानो के पीछे कौन बैठा था मुझे पता नहीं. वो सडनली वो पियानो नोट ढूंढ रहा है कि मैं क्या बजा रहा हूँ. Like somebody is trying to copy what I'm doing, Yeah. and I can hear it. And then suddenly Panchamda gets up from there and says, Oh my God. amazing. What is this? I said, your composition. I said, superb. उस superb जो बोला ना, अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हाँ, so it's you're blessed ना. मैं नहीं हूँ. I'm just the सूत्रधार. Okay. So that was your original tune that you were playing? Yes, I was just composing something. तभी कोई नहीं था तो मैं अपना I want to keep playing my music. मैं अभी रिकॉर्डिंग में आया, जो करना है जब टेक होगा तो I will play it. तो आपको लगता है कि नई जनरेशन जो है वो खुद का बनाने का सोचने की जगह पे दूसरों का कॉपी करके आपकी म्यूजिक बजा के आगे जाती रहती है? नहीं, कॉपी करना बुरा नहीं. सब लोग, मैंने भी नहीं, you just play the old songs. हाँ. And then go rather than thinking the original, जो आप original लेके आ रहा था. हाँ, तो जैसा आपने भी R.D. Burman का एग्जांपल दिया. You think that is not happening much more or rather? नहीं, R.D. Burman what he heard in me was ये बंदे में कुछ composition का skill है. Yeah. That's why he said fantastic. कि क्या notes जो follow, जो उन्होंने पियानो पे देखा कि कौन से notes कहाँ से follow हो रहे, तो wow. Yeah. That doesn't mean he's going to copy my music. हाँ. ये जो गाना कॉपी करना है वो इट्स अ डिफरेंट बात की ये गाना हिट हुआ है, चलो बजा दे. नया क्यों, अभी नया बजाऊंगा तो 10 बार बजाने के बाद लोगों को समझ में आएगा. पुराना गाना बजा दूँ तो 1 सेकंड में जैसा गाना शुरू हुआ है दूसरे बीट में चलेगा, लेकिन एवरीबॉडी नोज इट सो इंस्टेंटली. सो व्हेन आई स्टार्टेड बॉलीवुड रीमिक्सेस इन इंडिया विथ आशा जी, Yeah. that was Rahul and I. Yeah. तो that was because R.D. Burman wanted to redo his old songs. अभी ये पॉइंट आता है जब पंचमदा को उनके पुराने गाने फिर से नई पीढ़ी के लिए करना है. बट आई वांट टू डू इट विथ लेस्ली. अरे
और ये सेल्फ्रिजेस में मैं शॉपिंग कर रहा था, आशा जी वहाँ थी एंड सॉरी टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आशा जी बट Yeah, we'll take इट्स ऑल. तो आशा जी मिली, सर या क्या कर रहा है? सर मैं अपना कुछ एल्बम कर रहा हूँ कलोनियल कजन्स करके. अरे मेरा एल्बम करना है सर, अभी आपका एल्बम कौन सा करना है? आई डोंट नो. देन शी टोल्ड मी कि पंचम को, एंड पंचम दा जस्ट पास्ड अवे एट दैट टाइम. Yeah. पंचम को उनके जो पुराने गाने हैं ना, वो नई पीढ़ी के लिए फिर से रिकॉर्ड करना है तुम्हारे साथ. तो अब पंचम नहीं है, तुम करोगे? एंड वाज दैट अ क्वेश्चन? Yeah, that's true. ही इज माय आइकॉन, शी इज माय आइकॉन. Yeah. Obviously, so वो जो राहुल and I was my tribute to Asha ji and Pancham. Okay. But in your 20s, when you were growing in 20s is the age where, you know, musicians especially, you know, like they want to, जब हम जवान होते हैं और एकदम स्क्रीन पे आ जाना चाहते हैं, मतलब at that time तुम्हारा खून गर्म होता है. लेकिन उस वक्त पर जैसा आप अगर नोटिस करेंगे कि बाकी जो स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसरों के पीछे जाते थे, बाथरूम में जाके उनके, आप यू नो द फेमस सीन कि कौन बाथरूम में जाके गाना गाता था कि प्रोड्यूसर सुन ले बाजू में खड़े रह के, यू नो लाइक. सो आपको ऐसा लगता नहीं था कि वो बाकी जो नए नए म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं जो 25-30 साल के, वो लोग आगे जाते जा रहे हैं और आप खाली एक गिटार में, ऐसा कभी फीलिंग नहीं है कि मतलब फीलिंग लेफ्ट आउट एट दैट एज इन 20s? आई एम टॉकिंग अबाउट 20s. 20s अगर मैं 20s में आगे नहीं गया तो यहाँ ही नहीं पहुँचता. या I was going ahead in my own zone. I don't compete with anybody. I think आप बहुत अच्छा हो आपके घर में, मैं भी बहुत अच्छा हूँ अपने घर में. यू कांट बी मी एंड आई कांट बी यू. वो अगर माइंड में क्लियर है ना कि मैं आप नहीं बन सकता हूँ, मुझे रीडफ में काम करना है, मैं 4 दिन के बाद निकल जाऊँगा. यू बीन हियर 30 years. या I can't do it. I can't do it for 1 week. But you do the music that I do and you can't do it. Because what I can do, you can't do. Because I have spent so many years doing that. तो वो एक अपनेपन में एक आत्मविश्वास जो होता है ना, and it is not ego. I am very happy with the work I do. I don't need to, I want to present you my work. तो अगर उसको कोई फिल्म मिला या इसको मिला, sometimes you feel अरे यार मैं भी कर सकता था, but ठीक है, उनको लगा होगा I am not fit for that film, I am not fit for that, so maybe they didn't call and XYZ को बुलाया है. लेकिन I never felt anything less कि मुझे नहीं मिल रहा है, कि I'm not in the game, I'm not on the treadmill, I'm not in the rat race. I'm just creating my own music. और when I created परी हूँ मैं, everybody said amazing, so that sir can you do more? अच्छा ठीक है, तो जानम समझा करो, oh wow, जानम समझा करो, amazing. मेरी नींद उड़ गई, oh wow, amazing sir, can. So every time I'm doing something new, people are saying wow. तो उनको फिर लगा कि इसके पास कुछ टैलेंट है जो हमारे पास नहीं है. So imagine how many people came to me to do these songs, and the other music directors must have felt, अरे इसको क्यों मिला, मुझे नहीं मिला. Artists always feel कि मुझे करना है. या बट ऐसे लोएस्ट पॉइंट पे क्या करता है आर्टिस्ट? जब अगर आप किसी एक पॉइंट अगर आप जिंदगी का याद करें कि एक लो पॉइंट जहाँ पर आप एकदम लो फील कर रहे हैं कि भाई कुछ हो नहीं रहा है अपना, तो अपन किधर जा ही नहीं रहे, सब ऐसे वहाँ पहुँच गए, हम तो वहीं के वहीं बैठे, हमारी ट्रेडमिल पे भाग रहे, बस आगे पहुँच नहीं रहे. दैट वे डिड यू एवर फील दैट वे? तो मैं अपने ट्रेडमिल पे भागता नहीं, मैं चलता हूँ. दैट्स द डिफरेंस. बिकॉज इफ आई रन आई टायर माई सेल्फ आउट. और बाकी क्या कर रहे हैं मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है. इफ आई फील वेरी लो, दोस्त बाजू में बैठा है, डजंट आर्ग्यू, डजंट शाउट. जो बोलता हूँ, मुझे कुछ बोलना है तो गिटार उठा के भाई बोल दो, शांति. एंड एक सेंट्रल जो वेदर इट इज़ इन योगा, वेदर इट कि आप अपने आप को सेंटर करो, और फ्रीक्वेंसी ही चीज़ ओम वही चीज़ है जो आपको सेंटर करेगा. इट सेंटर्स द यूनिवर्स. तो आप गिटार उठाओ, स्ट्रिंग्स ट्यून में होना ज़रूरी. आउट ऑफ ट्यून रहेगा तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन एक बार सुर लग गया, यू आर बैक टू, देन देयर इज़ नो कंपटीशन, देयर इज़ नो वरी कि सब अपना अपना कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई एम बीइंग रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट आई डू. एंड इसीलिए मैं दूसरों से अलग हूँ, क्योंकि अलग इज़ नॉट बेटर, अलग इज़ नॉट वर्स, इट्स जस्ट अलग. लेकिन इतना अलग कि वो जो करते हैं वो सबको अच्छा लग रहा है. सो आई वुड नॉट हैव टुडे जानम समझा करो, सच अ बिग सॉन्ग. दे मेड अ मूवी कॉल्ड जानम समझा करो. इंडिपेंडेंट सॉन्ग का गाना लेके उनको वही टाइटल, अरे मैं इतना, चल हम लोग मूवी बना देंगे जानम समझा करो. आई मीन परी हूँ मैं इज नॉट फ्रॉम अ मूवी. हैव यू हर्ड अ सॉन्ग कॉल्ड यारो दोस्ती? यारो
Which movie is it from? रॉकफोर्ड. तो जब मूवी आया तो ओरिजिनल जो एल्बम था उसका गाना लेके डायरेक्ट फिल्म में डाल दिया उन्होंने. वो गाना टिल टुडे एवरीबडी सिंगिंग इट बिकॉज इट वाज क्रिएटेड विद नॉट विद सम कैरेक्टर एंड नॉट, इट इज क्रिएटेड फॉर द लव ऑफ दैट म्यूजिक. वो उसका सिचुएशन बराबर मैच हुआ, डाल दिया फिल्म में. टिल टुडे एवरीबडी सिंगिंग इट. यू डोंट रिमेंबर द मूवी, यू रिमेंबर द सॉन्ग. So, in your other words, like whenever you're low as a musician, you take your guitar, silently अपने दुनिया में जाओ and ओम जो है वो वही हो जाता है ऑटोमेटिकली कि एक शांत स्पेस जो आता है ना, जब सुर बराबर लगता है ना, आदमी शांत हो जाता है. आपका जो फ्रीक्वेंसी है करेक्ट ट्यूनिंग में आ जाता है ना, तो व्हेन यू प्ले समथिंग यू जस्ट फील वाओ, एंड देन दैट यू फील क्लोजर टू गॉड एज दे से. एंड दैट इज many of us musicians are blessed with that. And I'm saying music. Of course, all kinds of art are equally great, but music, because of frequency, क्योंकि ओम frequency है, वो हमें ज़्यादा, you know, takes you closer to the spirit. That is a scientific reason also, because when you chant Om, can you just say something like that more about it if you don't know something about it? I am not a scientist. No, but they say that. I don't know. हाँ, If you can वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, explain. frequency. Like when you say Om, something, हाँ, something. correct. वही जो frequency resonance, उसका जो गूंज है. Yeah. अभी इसी भारत में जो what is भारत का गूंज, not तबला, not ढोलकी, not nothing. इस पखाज झिंग झतुम झिंग झतुम वो झतुम, वो जो उसका जो रेजोनेंस आता है, वो दैट इज इंडिया में. पखाज का जो उसको काट के वो आधा बना दिया, एक तबला, एक बाया, एक चाटी. जॉइन देम टुगेदर, इट्स अ पखाज फंडामेंटली. एंड दैट जब पखाज बजता है तो रेजोनेंस और इंडिया का गूंज उसमें है. सो दैट गूंज फैक्टर इज व्हाट मेक्स यू फील कनेक्टेड. तो आप देखिए एनी स्पिरिचुअल म्यूजिक व्हेन इट हैज दैट काइंड ऑफ पखाज थिंग, यू स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा है, अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है वो तो एनालिसिस है, बट आई लाइक इट. कानों को हाँ, attention. एंड यू विल नेवर फाइंड पखाज को इधर कुछ नहीं. बजेगा जब बजना है, थोड़ा सा उसको टेक्निकल बजना है, लेकिन फंडामेंटली इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग द रेजोनेंस. बट ये सब आप जो कह रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से आया, थियोरेटिकल नॉलेज आया, कि भगवान ने आपको आके आपको बता के गया कि ये इतना अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक ऐसी होती है? लेटर टू. अगर मुझे पढ़ना था तो मैं हो सके आई वुड हैव बीन philosopher or adding one top multinational or something today. I've got the brain for it. I'm not wired for that. I'm wired for music. God is there. Yeah. God is everywhere. So भगवान ऊपर भी है, नीचे भी है. If he's everywhere, then he's everywhere, right? Yeah. So I don't think God is only up there, or he's around, he's in me, he's whatever. So when he speaks through you, Yeah. then something magic comes out. And theoretically थोड़ा सा सीख, बस इंटरेस्ट था तो बैकग्राउंड ने देखा ये फ्रीक्वेंसी है क्या, कैसा है, कैसा चलता है, क्या है. या दैट्स फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग. कि मैं अगर आपको कुछ बोलूँ तो मेरा कुछ तो थोड़ा सा समझ होना चाहिए, नहीं बस जो सुना तो बोल दिया. Right. And that's my belief. I believe that frequencies drive the universe. Frequency drives astrology. Frequency is what makes the planet moves and align and come into certain spots where the goonj of the planet's ka frequency is what is a good day for you or a bad day for you. I see. Is that the reason? I don't know. I'm just giving somebody a bright idea right now. Right? Yeah, I agree. Yes, it is. Is that the reason that, since you're speaking of that, your Krishna song, that, that is so therapeutic experience actually. Jesus come to us, Allah, Correct. like the same thing you're talking about actually. We are saying it's all one. No, which आपको कौन से रिलीजन को फॉलो करना है वो अलग है. बिकॉज रिलीजन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द स्पिरिचुअल. Yeah. तो आपको ये कॉम फॉलो करना है, वो कॉम फॉलो. आई बिलीव इन दिस, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट एट द एंड Yeah. यू नो दैट देयर इज अ पावर अबव यू. Okay. करेक्ट. यू फील दैट कि कोई तो है, कुछ तो है. यू कैन नेम इट वट एवर यू लाइक. सो वेदर इट इज अल्लाह, वेदर इट इज जीसस, वट इज राम, आपके हिसाब से आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं. आपको एक फिगर है, एक नाम है, बट फंडामेंटली इट इज द पावर Okay. of the universe. Yeah. I just want to know, what was the reason for, that
this indie music or this thing, how it started, what was the saturation point? Because at that time, even Dilwale Dulhania and all these things were Yes. big hit. Correct. So how did you create a space for this kind of music albums? So I think all over the world, it was MTV Yeah. that came in and then created the shift. Ki visual medium, music should not be only about music. It should also have a visual to it. जैसे हमारे पास तो बॉलीवुड में ऑलरेडी है, पहले से गाने के साथ विजुअल होगा. Whether you're in Kashmir or Kanyakumari, you can be in two places at the same time. So abstract video. My dad used to say, "ये क्या है तुमने MTV का हमने तो किया हुआ है." It's fact. You look at it that they suddenly in the Himalayas, suddenly on the deep ocean, you're in Arabia and the sands. एक ही गाने में कहाँ different outfits. So all that fantasy world, which is what I think when music started becoming kind of this independent music that started becoming different from film music. Wahan driving the video was the key angle. That's why you only know Sani Dhapa and you only know Krishna yeah. and you only know Janam Samjha Karo, but you don't know the other songs. You only know Pari Hu Main, but you don't know the other songs. क्योंकि वो doesn't matter, वो video नहीं है उसका. तो the video was the key driver. So I think that's how this non-film music and a lot of artists को करना था, उनको गाना था, लेकिन they were not the typical Bollywood type singers ना. Yeah. वो उनको गाना है लेकिन अपने ढंग से, अपने तरीके से. Yeah. So they got that opportunity in indie pop to do something else जो, I mean, आपको कोई सरदार में तुनक you don't think of it as Bollywood, right? उसने अपना बना दिया ना. He did his own thing, जो भी है. Yeah. Correct. The two uncles, Sanida Mamaga, looking cool, braids, and grandmother going, Janam Samjha Karo. I mean, bro, how's that possible? Yeah. So something outside Bollywood. So I think that was the beautiful part of that music being very creative, being very melodic, Yeah. and very exciting to execute because it was a new ground for everyone, for the musical artists and for the video artists also. ये कुछ अलग. So MTV drove that. MTV Channel V were the driving factors of indie pop, and when they shut down, everything went away with it. Like MTV stopped doing music Yeah. at some point, and Channel V went away. So the main forces were non-film music, Yeah. and that's where the younger generation got their data from. All the latest Gana kaun sa aaya? This has come. Oh, have you seen this one's new album? Have you heard this new song? Lucky Ali, oh Sanam, and all the girls were poster on the wall. Handsome guy, man. I love Lucky. Sunday he's singing a Bollywood film with some other actor, whatever. Sunday is not about Lucky Ali anymore. Yeah. So that shift happened, when MTV and all switched away. But and how did you meet Hariharan? If you can just tell us, how did you meet him? I used to meet him in this beat passing. I've met him before, but I've never worked. So earlier on, I'm saying very, very long back, I met him and never worked. Then I started working with him because I started doing jingles. Yeah. So he was the guy I used to keep seeing in the studio at Western Outdoor and this and that. And then I realized that he was like a very good singer and he sang Tamil, Telugu, Malayalam, whatever, Hindi. So in those days, jingles were done in two parts. The same jingle was recorded in English for the English audience. The same jingle was recorded in Hindi for the Hindi audience, but it was never on the same track. There were two different tunes. So the English one was also composed by somebody else who was more English in the composition. Yeah. And you will get one different tune. Hindi will be a different composer, Vaidyanathan. Somebody will compose that and make a Hindi desh, अपना भारत hinterland के लिए वो track बनेगा. Yeah. Piyush Pandit type of. Correct, Piyush Pandit. But Piyush Pandit were the last of those Mohicans, who could keep their foot on both. But earlier it was two separate things. English was alag, Hindi was alag. English was written, composed, sung by different people. Hindi. After that, when technology came and with multi-track, it became वही track पे अगर हम English के बाद हिंदी को dub करें तो we don't have to call the musicians again. Can we rewrite the lyrics? कि अगर हिंदी master हो, so there was one master track, whether it was a Hindi master or a English master. Then they would take the master track, उसके words को फिर से लिखते हैं. And then that has become the same tune, same music, only the voice could be the same. The lyrics will change, the tune will remain. So at the end of the day, you'll find that एक track से ही, once the musicians have come recorded, now we can dub Tamil, Telugu, Malayalam, all languages
सिर्फ एक आदमी को बुला के या एक सिंगर को बुला के वी हैव टू जस्ट डब द डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट्स इट. सो देन डबिंग बिकेम द की थिंग फॉर अदर लैंग्वेजेस एंड वन मास्टर हैड टू बी डन. Before going to Aryan, I just wanted to ask you that question. Advertising jingles, how did you start? Some do and all these things. How did it come to you? Like, is it also God gifted that suddenly आपको fruity मतलब सब बोलते हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि आप उसके पीछे fruity के पीछे बच्चे लोग हम लोग बचपन में बोले सब आप लोग आप ही पीछे उसके. नहीं गॉड गिफ्टेड तो है ही, तो इट वुडंट हैव कम. fruity का ही बता दीजिए, fruity का कैसे आया आपको? सो बिफोर दैट आई वाज अ गिटारिस्ट. Yeah. तो वो जब कंपोजर बनने के पहले क्या होता था, मुझे दे यूज्ड टू से ही इज अ फैंटास्टिक गिटारिस्ट, आपको रिकॉर्डिंग में उसको बुलाना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है. देन आई वांटेड टू कंपोज, तो देन जिंगल्स, आपका जिंगल होगा तो उसको बुलाओ, इट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड. मुझे जिंगल कंपोज नहीं कंपोजर नहीं है, ही इज़ अ गिटारिस्ट. तो आपको गिटारिस्ट पे ही बुलाना, कंपोज नहीं कर सकते, ये कंपोजर नहीं है, गिटारिस्ट है. तो करते करते when you finally got your first jingle to do, then those became my hit. Then became, Which was the first jingle, if you can recall? I can't recall the first, maybe it was Cadbury's, was it? I'm not sure. Something. Okay. Like I said, I have no plan कि मुझे बनना है, ये वो होते जा रहा है. आपके ट्रेडमिल पे चलते हाँ, वो चलते जा रहा हूँ, correct. So when the jingle thing happened, then said he is a very good jingle composer. जिंगल होगा तो उसको बुलाना चाहिए. गिटारिस्ट तो बहुत अच्छा है बट इज अ डैम गुड कंपोजर. तो अभी 30 सेकंड्स में 20 सेकंड्स में आपका जिंगल खत्म हो रहा है, मुझे लिखना है गाना. सो आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉन्गर फॉर्मेट. जैसे हमारा फॉर्मेट तो 30 सेकंड्स में खत्म हो रहा है एंड आई एम स्टिल मुझे गाना करना है, ट्राइंग टू गेट समबडी. No, he's a very good jingle composer. Songs, I don't think he can compose, 5 minutes, 6 minutes long songs उस टाइम. अब ब्रैकेट में आ गए थे. हाँ, सबका तो एक गिटार प्लेयर का ब्रैकेट निकल से वहाँ से मैं जिंगल कंपोजर के ब्रैकेट में आ गया. वहाँ से कोशिश करते देन परी हूँ मैं, जानम से. Oh, he's a fantastic composer. You should call him. If you have a song, you have to go to Leslie Lewis. I said, okay, fine. तो वो करते Yeah. it just became a journey that just happened by itself. I didn't choose कि मुझे jingle करना है. It just came as you started composing and things started happening. So then when I met Hari was really when all the jingles started happening. Not as a guitar player, as a jingle composer. Then he started singing for my jingles in Tamil. Do you recall which is the Hari? So many. I mean, there are lots. But if you can just recall one and just tell us. Nothing off my head. Just there are too many jingles. I've done primetime commercials for the last 40-30 years at least. Oh, that's too many. That's too many, even for me to remember. But yes, Hari has sung for a lot of my jingles. And उसमें हिंदी में गाना है, तमिल में गाना है. And then one day we were kind of waiting for the script to come. तो script आया नहीं. 8 बजे रात को तो गिटार उठा दिया. Just started jamming. And the musician sat down and suddenly there was a jam between the two of us. So he was doing Indian classical and I'm playing blues and then he's singing. Then I played, अच्छा बेटा blues चल तो तुम मेरा सुन. तो अभी रॉक सुन थोड़ा maybe. And he kept on, kept doing it and just became like a half an hour of just a unplugged something. And I was saying it's amazing because most classical singers वो एक ही राग में गाएंगे तो राग चेंज नहीं होगा, सुर वही रहेगा. तो अलग सुर में की चेंज, राग स्केल चेंज, and this guy is there at it. So suddenly that phone, those the old phone used to be the tring जिंगल रेडी हो गया, स्क्रिप्ट अभी भेज रहा हूँ. स्क्रिप्ट सब भूल गए थे ना. हाफ एन आवर वाज मैजिक. तो दैट्स द टाइम वी सेड इसका कुछ करना चाहिए, लेट्स डू समथिंग, लेट्स व्हाई नॉट फॉर्म अ बैंड एंड लेट्स गो एंड प्ले लाइव. वही कलोनियल कज़न्स का वो था, लेट्स गो एंड प्ले लाइव. एंड दैट्स व्हाई वी फॉर्मड कलोनियल कज़न्स एंड दैट्स हाउ आई मेट हरियर एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि एक जिंगल में जो जैम हुआ था से ये करना चाहिए. राइट. तो ये जिंगल के बारे में थोड़ा बताइए, फ्रूटी का कैसे आपने किया थोड़ा सा, इफ यू कैन जस्ट फ्रूटी लाइक व्हाटएवर. हाँ, तो लिरिक्स आते थे उस टाइम. So there was an ad agency, there was a Fruity is copy. the most famous one. Yeah, but there's so many I've done. What I'm saying, ad agency रहेगा, there'll be a they'll come with the lyrics. They'll tell me this is the copywriter. He will either come for the recording, maybe he won't come for the recording, but this is the copy. You have to do it, and we are recording now. Yeah. So I've now come. 4 घंटे में मैं मिक्स ट्रैक लेके जाऊंगा यहाँ से. मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी. अभी उसका क्या करूँ?
No, but we needed to be in a summer time to feel कि गर्मी में थोड़ा पीऊँगा तो अच्छा लगना चाहिए. That feel. So I decided to give it a nice reggae kind of laid back hip hop mango fruity, fresh and juicy, mango fruity. So it just became very cool. And वहाँ ही compose किया था. I programmed the music myself. I called in Sharon Prabhakar. She sang it. The agency was there. They loved it. And by 4 hours later, mixed, mastered, and gone. एंड व्हाट अबाउट दूध? दूध पीना तो लोगों को बहुत बोरिंग लगता है. उसमें आपने दूध को भी इतना इंटरेस्टिंग बनाने कैसे सोचा? स्टोरी तो वही है. कैसे आया? दूध के लिए अपने दूध पीने के लिए कौन म्यूजिक बजाता है मतलब? एग्जैक्टली. सो उनका वही प्रॉब्लम था कि दूध पीते नहीं लोग. बच्चे लोग दूध नहीं पी रहे. दे डोंट वांट टू ड्रिंक मिल्क. उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दूध नहीं चाहिए. सो हाउ टू मेक दूध कूल? तो दूध पियो glass full. दूध है must for every reason. दूध है must for every reason. दूध पियो glass full. दूध. So वो जो वहीं बैठ के, like if you gave me a script now and I composed it now and we recorded it now and you put it on air. Right. Then some people say आपने काम ही नहीं किया है. ऐसे भाई ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा स्किल सेट है. If you see लता जी, आशा जी स्टूडियो में आते, लिरिक्स क्या है, ट्यून क्या है, सुनाओ, गा लेते, अमेजिंग. बट वो सबसे नहीं होता है. वो इतने सालों का जो प्रैक्टिस करते 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 फिर वो जब वो पॉइंट आता है वो कर सकते हैं कि वो लेवल पे गाते हैं. सो लकीली फॉर मी आई हैव बीन कंपोजिंग एज अ यंग किड एंड वो करते 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 कम टू अ पॉइंट वेयर इफ यू गिव मी अ ट्यून आई कैन कंपोज इट. एंड ऐसा नहीं लगता क्या करूँगा मुझे आज. टुडे पीपल वांट टू टेक द ट्रैक, कीप इट एट होम. वो सोचेंगे रफ ट्रैक बनेंगे, 4 ऑप्शन बनाएंगे. भाई ऑप्शन माइंड में बनाओ. बनना चाहिए ऑप्शन 100%. ये नहीं तो उससे और कुछ अच्छा है. और उसको कंडेंस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, वो पहले यहाँ बनना चाहिए. या आप कभी दो जस्ट बिकॉज दे टू माइट बी वेरी सेपरेट, यू माइट डू 2 बेसिक थिंग्स, बट फंडामेंटली इधर ही होना चाहिए. तो यहाँ होने से आई थिंक इट्स वेरी इजी बिकॉज यू नो, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे क्या करना है. ये ट्यून ऐसा होना चाहिए, इसके रिदम ऐसा होना चाहिए, इसका बेस ऐसा होना चाहिए. तो ये इंस्टेंट आपको आ जाता है कि इट टेक समटाइम्स क्रिएटिव ब्लॉक होता है? ऐसा आता है आपके साथ? हुआ है कभी क्रिएटिव ब्लॉक, जैसे कि भाई आ ही नहीं रहे यार, गिटार भी लेके बैठे लेकिन हाथ चल ही नहीं रहे, मतलब वो मुझे लगता है सब आर्टिस्ट को कभी कभी होता है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है तो मुझे करना है, कंप्लीट करना है, डेट्स आर देयर, विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन दिस. उसके पहले तो गाना ओके करके अप्रूव करना है. तो फर्स्ट हैव टू कंपोज द सॉन्ग. राइट. लकीली आई नेवर गॉट स्टक ऑन दोस. जब मुझे प्रोजेक्ट है तो मुझे पता है क्या करना है, वो सब एक्सपीरियंस है. मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है तो समटाइम्स यू फील लाइक अरे ओके कल देखता हूँ परसों, बिकॉज उसमें कोई टाइमलाइन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है ना. Yeah, for advertising and all, it's easy to. It's a time constraint. When they give you the job, there is a end time जो आपको deliver करना है. And because you deliver it well और smoothly, वो फिर से आते हैं आपके पास कि he is comfortable, he is good to work with. भाई मुझे जो चाहिए मुझे मिल गया. That's why there is a परी हूँ मैं. That's why there is a जानम समझा करो. That is why कायज हाला. That's why there is a यारो दोस्ती. That is why मेरी नींद उड़ गई. Because people have come back to you saying इसके पास जाऊंगा तो मेरा गाना हिट हो सकता है. Right. और इनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टार कैसा बनाना है. बिकॉज दैट्स माई जॉब टू मेक यू अ स्टार. लेकिन अब जो मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ मेरे लिए, वो मैं स्टार हूँ, वो मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ. लेकिन जब आपके लिए कर रहा हूँ then my job is to make you a star. What will you tell to young generation, those who are not able to make as musician, they struggle, खाली गाना गा रहे, रेस्टोरेंट में गाना गा रहे या इधर गाना गा रहे, उनका हो ही नहीं रहा कुछ, उनमें कमी कुछ है, टैलेंट स्पॉट नहीं हुआ है, या उनमें क्या क्या आपको लगता है? तो आप जो बोल रहे हो ब्रॉड एंड जनरली फॉर यंग, तो मुझे भी पता नहीं उनमें क्या है क्या नहीं है. अगर मिलूंगा तो आई कैन टेल यू कि इसमें थोड़ा ऐसी बात है, या आप बहुत हाई गा रहे हो, आप थोड़ा लो में गा लो, आपका रेंज, आपका गूंज अच्छा है, लेकिन इतना हाई गा रहे हो तो गूंज नहीं आ रहा है. बिकॉज यू कैन
इतना है मत गाओ ना, हाँ अब कुछ वॉइस में कुछ उनको समझ में नहीं है कि मेरा रेंज क्या है, मैं कहाँ तक, सो दैट आई कैन ओनली डू जब मैं उनको सुन सकूँ. तो ब्रॉड इन जनरल में इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरीबडी मेक्स म्यूजिक. जब से कंप्यूटर आया है सब म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, सब कंपोजर बन गए, सब प्रोड्यूसर्स बन गए. सो दे कैन ऑल डू, दे ऑल गुड. अभी वो जो गुड चलेगा वो गुड हो जाता है. करेक्ट. तो मैं कौन हूँ जज करने वाला, वो ऑडियंस डिसाइड करेगा क्या अच्छा है. बिकॉज आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. मेरे एक पहचान में तबला बजाने के लिए अपने मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे को दिया था तबला बजाने. 4-5 साल से वो तबला सीख रहा है. एंड आई वोंट नेम द फेमस तबला प्लेयर. वो बोला मेरा दोस्त मेरा बेटा बजाता है, वो बोला इसका बजा सकता है, उसका बजा सकता है, ये वाला तबला. तो फेमस तबला प्लेयर ने मेरे बेटे को, उसके बेटे को पूछा कि आप खुद से क्या बजा सकते हो, वो बजाओ. तो वो बजा ही नहीं सका. तो बोला मेरे को खुद से कुछ नहीं आता है. तो उसने उसको बोला आप तबला छोड़ दो, आपसे आप तबला प्लेयर है ही नहीं. वो 4-5 साल से बजा रहे तबला, समझ रहे. लेकिन मैं समझ गया. तो आपको लगता है ये सच बात है? मतलब अगर आप खुद से कुछ डिलीवर नहीं कर सके एज ए म्यूजिशियन, मतलब आप खुद म्यूजिशियन है ही नहीं, मतलब आप दूसरे का खाली बजाते हो. तो आपको इतना ही सीखना है कि मैं सबके लिए उनके बैंड में पीछे में कुछ तो कुछ बजाओ जो उनको चाहिए, तो आप बन सकते हैं. क्यों 4-5 साल आपने डाला है. लेकिन आपको एक आर्टिस्ट बनना है वही इंस्ट्रूमेंट पे, तो आपको अपना खुद तो बनाना पड़ेगा. आपको समझ भी नहीं है मेरा क्या है, तो फिर आपको समझ ही नहीं है. जिसको समझ नहीं है वो प्रॉब्लम है. तो हो सके वो लड़के को समझ नहीं आया, मीन्स दैट ट्यूटर मस्ट हैव फेल्ट कि इसको अपने आप बस जो दिया वही कॉपी करना है बस, उसके अलावा में कुछ भी नहीं आता. तो फिर वो म्यूजिशियन कैसा बनेगा? वो म्यूजिशियन वो बजाएगा इंस्ट्रूमेंट. वो आप कोई जैसे आप बोल रहे ना कोई क्लब में इधर ये वो आप बजा लोगे, लेकिन आपको आर्टिस्ट बनना है, चाहे लोग बोलेंगे वाह अमेजिंग. तो लेस्ली लुइस के साथ वो वक्त आया था जब वो आर डी बर्मन बैठे थे पियानो के पीछे. एट दैट टाइम यू फील दैट वाज द टाइम व्हेन यू रियलाइज भाई मैं खुद ही म्यूजिक बना सकता हूँ करके? नहीं, वो तो मुझे पहले ही पता था दैट मैं खुद बना सकता हूँ, बिकॉज फ्रॉम स्कूल डेज आई एम कंपोजिंग. बट सच ए बिग कंपोजर जो मेरा फेवरेट है, और वो मुझे बोल रहा है कि एंड ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन से नोट्स बजा रहा है, मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन माई म्यूजिक. तो वहीं से वाव फैक्टर हो. जब उठ के जब संडे एसोस पंचम था, मुझे लगा वन ऑफ द अदर म्यूजिशियंस. वो क्यों पियानो अपराइट पियानो था तो फेस नहीं दिख रहा था. उठ गए तो पंचम था ऐसे क्या नोट्स है, वेरी नाइस. योर सॉन्ग, योर कॉम्पोजिशन. यस सर, यस अंकल, सुपर. वो सुपर बोला तो सो वो वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है. ये जो हमको एक तो लोगों के साथ करके सीखने को मिलता है, एक उनके इनकरेजमेंट से सीखने को, एक अपना ज़्यादा इनकरेजमेंट हो जाता है कि भाई तुम जो कर रहे हो सही हो. बिकॉज आर डी बर्मन लाइक्ड इट. आई हैव डन जानम समझा करो. आई गॉट 2 लेजेंड्स, लिरिक राइटर मजरू सुल्तानपुरी, सिंगर आशा भोसले. दोनों को मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन उनसे भी कुछ उनके जो इनपुट्स है उससे वो मुझे सीखना है ना. वो इतने बड़े कैसे बने, उनमें क्या बात है. एंड अगर मैं वही करूँ तो नॉर्मल लगेगा सबको, क्यों सबने सब सुना है जो वो करते हैं. एक कुछ अलग जो मैं दोनों को जोड़ के कुछ मेरा डाल के अपना करके अगेन में कम टू से पढ़ खुद क्या कर सकते हो, तो राहुल अनाय बना. ये हरिहरन का जो है आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आप शेयर करेंगे. कॉलोनियल कजिन्स नाम किसे पड़ा करके? That's a very interesting story, I know, but if you can tell our readers, it is very cool because because मैं advertising से तो I was the cool guy, and Hari was not from advertising, he was from ghazals and film, Hindi film. So जब हम फॉर्म करें मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा नाम सोच लूँगा, I'll figure it out. ये वो नाम हो ही नहीं रहा था. तो then we started trying to look for all these, you know, आत्मा, विश्वास, these all these. नहीं वो संस्कृति नाम, लाइक संस्कृत नेम्स, वो हमारा म्यूजिक उसमें सूट नहीं हो रहा था. तो मुझसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हरी से भी कुछ नहीं. वो जो हम सोच रहे थे बकवास था. वन डे वेंट टू लंदन एंड उसका एक पारसी दोस्त है वहाँ, तो ही सर हरी लेट्स गो फॉर हाई टी एट द क्लब. तो हरी को वहाँ लेके गया. तो ही सिटिंग इन लंदन इन दिस ब्रिटिश क्लब. नहीं पारसी फ्रेंड बोल रहे हरी यू नो व्हाट माय ब्रिटिश फ्रेंड्स एंड आई कॉल ईच अदर. तो इसे व्हाट कॉलोनियल कजन्स.
एंड हरी को ऐसा लगा कि मैन, तो मुझे आके फर्स्ट एलएसी सुन, ये नाम सुन, कॉलोनियल कजिन्स, हाउ डू यू थिंक, आई एम सेइंग उसको कैसा नाम है, यू नो, लाइक इट्स नॉट जेलसी बट यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई आई एम द कूल गाय फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, मेरे मुझसे नाम नहीं हो रहा है, एंड हरिहरन इज कम विद द नेम कॉलोनियल कजिन्स, देन ही टोल्ड मी हाउ ही गॉट द नेम, बट गॉट द नेम ओके, उसके माइंड में तो अंडरस्टैंड कि ये नेम अमेजिंग है, Yeah. वो आर्टिस्ट्री तो है ना, Yeah. अदर वो भूल जाता है, एंड दैट नेम वुड हैव गॉन अवे. And how did you like start your music first and how did you jam just? वही तो मैंने अभी बताया ना. नहीं, जैसे कि मतलब फर्स्ट गाना जब आपने रिकॉर्डिंग करने, वो तो आपने बताया पहले वहाँ पर हुआ था, लेकिन जब गए स्टूडियो के पास ये लेकर गाना बना, तो हाउ वाज दैट थिंग? बिकॉज़ यू बिकेम an overnight sensation मतलब यू नो एक इंडिया को आप लोग ने पूरा छा गए, मतलब वो कैसे हुआ? मतलब आपको लगता है ओवरनाइट हुआ? नहीं ओवर, मुझे तो लगता है 1992 में ये शुरू हुआ है, 1996 में आई नो, बट लेकिन जब रिलीज हुआ तो एकदम हम लोग सब तो दीवाने हो गए थे, लेकिन लाइक ए स्टॉर्म. Correct. No, I totally agree. I'm laughing because ये 1992 में हम सोच रहे थे, आप सुनोगे तो ये आपको ये होने वाला है, ये अमेजिंग एक्सप्लोजन स्टॉर्म होने वाला है, लेकिन 96 तक आप तक आया ही नहीं ये म्यूजिक. 94 में हमने एल्बम रिकॉर्ड करके मिक्स कर दिया था, इट वाज रेडी फॉर रिलीज, और एक इंटरनेशनल कंपनी से वो कुछ कर रहे थे, मैग्ना साउंड, तो उन्हें वहाँ से एक ईमेल आया. ईमेल भी नहीं था उस टाइम, फैक्स था. 94 में या 94 96 में तो ईमेल है. हाँ, फैक्स आया, मैं ऑफिस में बैठा था, और जैसे फैक्स आया वो पढ़ के मुझे पास किया. इट वाज रिटन, दे वर ट्राइंग टू गेट दिस इंटरनेशनल कंपनी टू लीज अस, कि इंटरनेशनली हम लोग रिलीज करें. उनका रिप्लाई है, ग्रेट एल्बम, फैबुलसली प्रोड्यूस्ड, बट व्हाट इज इट? समझ में नहीं आ रहा है क्या? So they didn't do it. So they didn't do it. तो nobody released it. क्यों? अभी इसके पीछे फंड्स कौन डालेगा? ये कोई समझता नहीं है म्यूजिक. Then they said, अच्छा कृष्णा नीबे, अच्छा भजन पॉप है क्या? So, नहीं भाई, भजन पॉप नहीं है. अच्छा हरिहरन लेस्ली लुइस, गजल पॉप. ऐसा आप बोल रहे यार, लिसन ना. तो कोई सुनने को तैयार नहीं, क्यों? उनको एक बॉक्स चाहिए था कि कैसे मार्केट करें ब्रैकेट में. हाँ, तो ब्रैकेट हुआ नहीं, और 1994 से 1996 तक हमने ये रिलीज़ नहीं किया. हम मतलब वो रिकॉर्ड लेबल ने रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि वो बोला फिर कब कैसे रिलीज़ करे, क्या पता नहीं है, क्या लोगों का इंटरेस्ट होगा, अभी इतना पैसा कौन और डालेगा इसके पीछे. वो सो 96 में रिकॉर्ड लेबल से चलो कोई और रिलीज़ देगा, हम लोग ही रिलीज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, आपको रिलीज़ पार्टी वार्टी वो सब तो हो नहीं सकता है, वी विल जस्ट रिलीज़ इट. So it was on Hariyan's birthday, my terrace in Bandra. Okay. हमने record label को आपने invite किया as a party for the release of Colonial Cousins. Okay. और वो अप्रैल में 3rd of April जब रिलीज हुआ 1996 वहाँ से वो जो जैसे आपने बोला एक्सप्लोजन, दैट ऑडियंस वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट कि भाई हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं. लेकिन 2 साल जब नहीं हुआ तब आपका क्या रिएक्शन हो रहा था या क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा था? गिटार 2 साल बजा रहे थे. हाँ, हरी एंड आई वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, क्या हो रहा है कोई. देन वी डिसाइडेड कि छोड़ना, हम लोग रिलीज नहीं करते, लेट आवर किड्स लिसन टू इट, देन दे विल नो कि फादर्स ने क्या काम किया था. माय किड्स विल लिसन, से 1994 में सी माय डैड, तो फैन बच्चा ही हो गया. But we didn't release it because we said करना है तो ठीक से करना है, नहीं तो नहीं करना है. I think that way Hari and I are like brothers कि हमको दोनों को ठीक से करना है, नहीं तो नहीं करना है. वो half baked कुछ भी करो, उस पर हाथ मारो, और वो आदत नहीं है. ठीक से करो या मत करो ना, because आप ठीक से नहीं कर सकते. So I think that kept us together, दोनों को, हम दोनों को, वो from 94 to 96 की. ठीक है ना, म्यूजिक तो अच्छा है ना. कभी दारू वारू पी के आउट हो गए तुम ऐसा? आउट तो नहीं हुए यार, कुछ हो नहीं रहा भाई, चलो आज दारू पीने बैठते. नहीं, वो तो कभी कभी होता है. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी मीट अप, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स. बट फ्रस्ट्रेशन में लाइक फ्रस्ट्रेशन में हम लोग पीते नहीं. फ्रस्ट्रेशन में गिटार उठाऊंगा मैं, ही विल डू रियाज. गो बैक टू योर रूट्स ना. वो जो आपके पास है मैजिक, वो अगर आप छोड़ दिया फॉर अल्कोहल और फॉर ड्रग्स और फॉर एनीथिंग, फिर आपका जो पावर है वो निकल जाता है. योर पावर इज दैट, द म्यूजिक.
हरिहरन का पावर द म्यूजिक है, मेरा पावर द गिटार है. मीन द गिटार इज माई म्यूजिक थ्रू द गिटार फॉर मी. Yeah. Like first I will not sit on the piano or a tabla or drum. I'll first pick up a guitar. Yeah. So it's an extension of me. ना हरिहरन will open his mouth. वो उसका म्यूजिक है, वहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा. मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है. बट अगर वो ही भूल गए ना Yeah. फॉर सम अदर थिंग कि चलो इसको छोड़ते हैं अभी, यार दारू पीते हैं, वो नहीं होता है. देन इसका पावर ही निकल जाता है, Right. उसका प्रैक्टिस निकल जाता है. सो आई टेल एवरीबडी इट्स प्रैक्टिस. जब आपके पास काम नहीं है, मेक श्योर आप डिप्रेस होने के बदले आप प्रैक्टिस शुरू कर लो और अपना तलवार इतना शार्प बनाओ, क्योंकि ये सर्चलाइट जैसा है हिट होना. सब लोग खड़े हैं अंधेरे में, एक स्पॉटलाइट आके ऐसा घूमते रहता है और कभी कभी आके 2 मिनट एक्स्ट्रा तुम्हारे पास रुकता है. जब ज़्यादा रुकता है तो सब लोग अरे वो देख, ही इज़ अ स्टार. सडनली इट गोज अवे, द लाइट गोज. सडनली वो अरे वो एक गाना किया था ना उसने, गया. कोई कोई लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट स्पॉटलाइट वहीं खड़ा रहता है. तो यू सी देम ऑल द टाइम एज कंसिस्टेंट स्टार्स, दे आर ऑल द टाइम देयर. लेकिन जब वो स्पॉटलाइट आएगा, अगर आपका तलवार शार्प नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपका जो मैजिक है वो आप 100% नहीं बता सकते. सो यू बी रेडी फॉर द स्पॉटलाइट. वो कभी भी आ सकता है. एवरी डे आप प्रैक्टिस करो. I see. तो ये जो ऐसा कभी लगा नहीं कि भाई हम तो गाना बजाते लेकिन पैसे वैसे तो मिलते नहीं, खाली खुद के लिए बजा रहे, खुद ही घर में बैठे हैं, खाली अपने बच्चों के लिए रखे एल्बम, ऐसा कभी लगा? तो पहले पहले जब गिटार बजाता था, आई यूज्ड टू गेट 100 रुपीज़ टू प्ले फॉर अ रिकॉर्डिंग. Okay. फिल्म रिकॉर्डिंग, Yeah. एल्बम रिकॉर्डिंग, 100 रुपीज़. और इलेक्ट्रिक गिटार अगर मैंने बजाया या अकूस्टिक गिटार के लिए, बॉक्स गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार बजाया तो 150. 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर द हायर ऑफ द एम्पलीफायर. जो आपके पास हो नहीं हो उतना एक्स्ट्रा, मेरे पास तो नहीं था, बहुत लोगों के पास नहीं था, तो जाके हायर करना पड़ता था. वो 50 रुपये उसको भी जाता था. तो 50 रुपए के लिए 150 रुपीज़ आपका हायर चार्ज है. Yeah. अकूस्टिक गिटार अगर मैं माहिम से मटूंगा चल के जाऊँ, मेरे घर से मटूंगा चल के जाऊँ स्टेशन, वहाँ से चर्च गेट 1 रुपी टू गो, चर्च गेट से स्टूडियो चल के जाओ, फिर चर्च गेट से रिटर्न 1 रुपी टू कम बैक बाय ट्रेन. Yeah. ट्रेन 1 रुपया गए, 2 रुपये गए, 100 रुपीज़ में मेरा प्रॉफिट क्या है? 98. 90 रुपीज. Yeah. तो 98 का प्रॉफिट. इलेक्ट्रिक गिटार अगर मैंने बजाया तो मुझे एम्पलीफायर हायर करना पड़ेगा. मेरा गिटार फ्लाइट केस में है, हैवी है. इलेक्ट्रिक पेडल्स चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक पेडल्स, उसका अलग एक सेक्शन. गिटार, पेडल्स, एम्पलीफायर, वो भी बॉक्स में हैवी. अभी उठा के तो ट्रेन में नहीं लेके जा सकता हूँ, तो टैक्सी में लेके जाना. फ्रॉम माई प्लेस टू द स्टूडियो एंड बैक वॉज 40 रुपीज़, 80. ओके. अभी 80, फिर 50 रुपीज़ को हायर चार्ज देना है एम्पलीफायर का. 130 हुआ, हाथ में 20 रुपये. अभी बंदा चले रिकॉर्डिंग करने, अभी 4 माला चढ़ो, ये सब लेके अकूस्टिक गिटार लेके जाऊंगा, ये सब 4 माला आपको उठा के लेके जाना है. हाथ इतने कड़क हो जाते हैं, यू कांट प्ले. देन पीपल से इसको किसने बोले बजाया क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज माई फिंगर्स हैव बिकम ऑल स्टिफ कैरिंग दैट. तो वहाँ एक आदमी रहता था, हर म्यूजिशियन के लिए 10 रुपये लेता था. मैं आपका उठा के लेके जाऊँगा 4 माला, उसको 10 रुपये. हाथ में कितना है? 10 रुपये हो गए. एंड आई हैव प्लेड सो मैनी शोज रिकॉर्डिंग्स फॉर 10 रुपीज़. क्योंकि जब इलेक्ट्रिक गिटार बजेगा तो मेरा म्यूज़िक वहाँ सुनाई देगा आपको. जब पीस आएगा तो आपको सुनाई देगा. अकूस्टिक गिटार तो पीछे झिंचक बज रहा है सबके साथ सब. तो 98 से मतलब नहीं था, मुझे वो म्यूज़िक सुनना चाहिए, भले उसको 10 रुपये मिले. और दिस विच ईयर वाज दैट? इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होता था? 1980. तो 10 रुपये में क्या मिलता था? पता नहीं है, कुछ नहीं. तो एंड में यही हुआ कि एज अ यंग आर्टिस्ट व्हाटएवर, भाई 10 रुपये से मेरा कुछ होता ही नहीं है. यू नो व्हाट आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग? I would take a taxi to Matunga station, which is 5 rupees. Then take 1 rupee train, but carry the flight case, the amplifier, and 8 a.m. trying to jump into the train. Oh my God. I've tried karo. And I've done this for some time. Then I said I can't do it. It's not possible. It's crazy. But उसमें just to save 10 से 20 या 40, 50 मिले हाथ में. But मुझे इलेक्ट्रिक ही बजाना है. That kind of passion. So I think passion is the key that drives everybody. Today, the biggest artists are only driven by passion.
आर्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन आर्ट को आगे ड्राइव करने के लिए पैशन चाहिए ना. बट पैशन का स्टीम जाता है आपको 30 इयर्स में भी कभी 40-50 इयर्स ऑलमोस्ट स्टीम कभी गया ही नहीं मतलब. एब्सोल्युटली नॉट. अभी जाने वाला नहीं. आगे आगे देखो, स्टीम तो अभी बढ़ने वाला है. हाँ. वाई? बिकॉज आई हैव सो मच म्यूजिक टू प्रेजेंट टू यू. परी हूँ मैं, जानम समझा करो, यारो दोस्ती, पल सब हो गया है. कलोनल कज हो गया है, कोक स्टूडियो हो गया. वो तो आप हिस्ट्री की बात करें. मैं आगे नेक्स्ट जनरेशन को क्या चाहिए. जैसे फिर से रॉक एंड रोल या तेरे बिना लव एक गाना है फ्रॉम द वाइट एल्बम, जो भी है वो कोई भी गाने आप सुनोगे अभी, यू विल टेल मी इट्स वाओ, इट्स वेरी नाइस. आई हर्ड जस्ट वाइट एल्बम जस्ट. बट इट्स नाइस. नाइस. वाव नहीं है क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है. परियू में 1991 में रिलीज हुआ था, किसी को सुनना ही नहीं था. 1993 में पीपल स्टार्टेड आस्किंग, हे हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग परियू में, अमेजिंग, सुपर्ब. तो जब वक्त करेक्ट आता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी जब अलाइन होता है ना, वो गाने का और यूनिवर्स का, एवरीबडी स्टार्ट्स लविंग इट. आई रिकॉल आई वाज इन दैट MMK कॉलेज परियू 1990 since you mentioned. At that time वहाँ पर एक बड़ा सा ये था, सडनली किसी ने लगाया, वैसे रोंगटे खड़े हुए लाइक में, बड़े बड़े स्पीकर पर से एकदम मेरा पूरा कॉलेज झूम उठा था. मुझे बहुत अच्छे से MMK कॉलेज नेशनल यहाँ पे. बट इट टुक जस्ट टाइम टू पिक अप एंड नाउ एवरीबडी सीइंग. मतलब भाई मैं तो बच्चा है ना. तो यही मैं जो कर रहा हूँ ना, हो सके 2-3 साल में लोगों को वाओ हैव यू हर्ड दिस द से, मैंने तो वाइट एल्बम उस टाइम सुना था. हाँ, इट हैपेंस. गाय कॉल्ड डेविड ग्रे इन इंग्लैंड, उसका एल्बम आयरलैंड में रिलीज हुआ था, किसी को लेना देना नहीं. 3-4 साल बाद में उसने लंदन में, इंग्लैंड में रिलीज किया, इट बिकेम नंबर 1. तो एक होता है उसका टाइम जब. तो आई नो कि मैं जो कर रहा हूँ ना, लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे लगता है, क्योंकि जो कुछ काम ने आज तक किया है लोगों को अच्छा लगा है और मुझे अच्छा लगना चाहिए. तो दोनों है. वाइट एल्बम, फिर से रॉक एंड रोल, आगे जाते जाते there's going to be more जो लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगता है. आई एम नॉट डूइंग इट फॉर लोगों को अच्छा लगता है इसलिए करो, नहीं, पहला मुझे अच्छा लगना चाहिए. और जो मुझे अच्छा लग रहा है आपको भी अच्छा लगना चाहिए. What happened to your team then? Why डिपार्ट मतलब ये जो सेपरेशन बोलो या मतलब MTV का टाइम खत्म हो गया था इसीलिए कॉलोनियल कज़म खत्म हो गया? आई थिंक MTV के टाइम के बाद सब लोग गुल हो गए. Up to there, KK got into movies. Lucky Ali got into movies. Singing for film. तो उसके बाद KK never came out with an album for 8 years. 8 साल के बाद सेकंड एल्बम. तो क्योंकि बॉलीवुड ने आपको ले लिया है अपने सर्कल में. So the whole system only changed. जैसे आइटम नंबर आने लगे टीवी पे. What was that thing all about? Item number, to bring the youth back to Bollywood. हाँ, मतलब less clothes, less, more sexy, more सब item करके bring the youth back here. और जब तक MTV सब बंद हो गए तो उनका भी पावर बंद हो गया, यहाँ के पूरा ऑडियंस को वहाँ लेके गए. So that's how that shift had happened. And nothing wrong with it. Bollywood is great. उसमें आज you hear पुराने गाने, even some 90s, 80s, 2000s, I mean there's some great songs there. But एक दौर जो था सिर्फ म्यूजिक का, with MTV came the music and visual. और क्यों उस टाइम में जब गाने रिलीज होते थे, अब मूवी थिएटर के बाहर आपको एक स्टॉल मिलता था जहाँ लिरिक्स बिकते थे. You could buy the lyrics of the songs outside the theater. I recall this. So everybody knows the words. अभी गाना सुना बहुत अच्छा है, जाके रेडियो पे सुना या उसका रिकॉर्ड लिया, वर्ड्स याद कर लिया, वो नहीं है. दो इट्स अवेलेबल ऑनलाइन. आप आर्टिस्ट के पेज जाओ, यूट्यूब पे जाओ, उसके लिरिक्स सब है, कोई देखता ही नहीं है. जिसको इंटरेस्ट है वो अलग बात है, बट जस्ट जनरली. सो आई फील म्यूजिक का जो दौर था ना, वो फिर से जो मेलोडिक म्यूजिक, कि जब तक मेलोडी नहीं है तो म्यूजिक रहेगा नहीं. और इसलिए आपको डिप लग रहा है. वो पीपल से ना 90s में क्या म्यूजिक था हमारे ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में मेलोडी बहुत स्ट्रांग था और बीच में ड्रॉप हो गया है. अब जो मैं आया हूँ फिर से ले आओ. इनफैक्ट माय डॉटर एनवीज भी कि हम 90s में जवान हुए, क्योंकि एक से एक गाने जवानी हुई तो ऐसे हो, शाहरुख खान है, सलमान खान है, अक्षय कुमार, गुड लाइफ, गुड टाइम टू बी यंग एट दैट टाइम. एग्जैक्टली. गाने अच्छे, पिक्चर अच्छी, आज हम लोग तो अभी भी वही सुन रहे करके ऐसी ही शी सेज दैट, यू नो. नहीं, बट द फ्यूचर इज गोइंग टू चेंज.
मुझे लगता है. एंड जैसे आपने कहा स्टीम कम तो नहीं होने वाला है, बिकॉज आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट माई म्यूजिक एंड दैट हैज़ नेवर चेंज्ड. मुझे कोई मकसद नहीं कि किसी को मतलब इसको प्रमोट करो, नहीं. आई हैव टू प्रमोट म्यूजिक दैट आई लाइक. या बट हरिहरन से आपका दोस्ती है, अभी भी बातचीत है? 100%. बातचीत होती है मतलब 100%. बट क्यों नहीं होगी? डू यू फील लाइक यू कैन रिवाइव मतलब वी आर ऑलरेडी रिवाइव मतलब जो colonial cousins like coming back now again right now. Last year we did a concert in Singapore. Yeah, Fantastic. If there is a concert to do, we'll do. But Hariharan has got a journey of his own, right? yeah, I've got my own journey. yeah. एक ये हमारा एक ही बैंड है जो दो स्टार्स साथ में मिले और एक बैंड बना दिया. लेकिन हर अलग आर्टिस्ट जो देखे, whether you see सुनीता राव, अलीशा और दलेर मेहंदी अलग, वो एक सिंगल आर्टिस्ट है. तो अपना करियर जाते, ये हम दो लोगों का करियर साथ में कितना जुड़ेगा. Yeah. So at some point when we have to do Colonial Cousins, we are doing Colonial Cousins. Okay. 100%. Okay, we'll take a break now. Yeah.